So now we are dealing with this concept. We are dealing with this program called as arith. We are writing a code for this problem, and our problem is very simple. We want to implement. So I'm. So this is my problem area that I will be writing a program for with the name called as arith to perform all arithmetic operation like addition, subtraction, multiplication, division of two double with static method. So here I have declared this class and with main function. Now main intention is that I need to create this arith class. So class arith. So this is my class, and here I will be doing some operations over there. So directly I am writing a static. See this, the name is always in a lower case. Static double, because I will be returning double. Add function, and it will be containing double a comma double b, and it will be return, and it will return into bracket a plus b. So that's it. Okay, now I will be writing another class for sub multiplication also. So whichever class, so suppose double subtraction, so sub, and into the definition same, I will be using the same variables. So just I will copy the name of these two variables. I'm pasting over here. So it is double a and double b, and I will be calling it as static. So static means it will be created directly. We are not required to create an object of this class. So again return into bracket a minus b. So this is the one operation. So addition is completed, subtraction is completed. Now we'll go for multiplication. So static multiplication, I am using the name called as a mul. I am returning something, so it should be a double because I am using this one, and into bracket this one. So again it will be returning a multiplied by b, and finally one more function that is for the purpose of division. So static double division, div is the name of function, and into this variable a and b, and we'll be doing some operation that will be returning division. So return into bracket a divided by b. So this is the only thing that is expected in this class. So arith class with addition, subtraction, multiplication and division, two variables will be passed to this function, and will be returning the addition of two numbers, and as these are the two double values, so we'll be returning double itself, and we are declaring that function as static. So all definition will be same, all functions will be static. Now into this main function, when I want to use this, there is no need for me to create an object of this class. Just like this, arith dot one second, it's arith, yes. So आपको ऐसा करना नहीं है, और arith ob1 is equal to new arith, ऐसा अगर आपने किया, एंड ob1 डॉट, आपको कहाँ पर भी ऐड नाम का फंक्शन दिखाई नहीं देगा. अगर आपने लिया उसको, सपोज आई एम सेइंग 10 and 20, so there will be an undefined this. So the static method, it is static, and it should be static away. So ये this is not a good way of writing a code. तो ये हम उसको कमेंट में डाल देते. This will be, this is what we call as an error will be occurred whenever we are running this program. So this is a basically instance variable and instance method of calling instance method. So हम उसको object के reference से बोला रहे,
बट ये हमें यूज़ नहीं करना. हमें कैसे यूज़ करना है अभी? इट्स arith क्लास का नाम डॉट add function, and then you pass a value that suppose I want 10 and needed to be added with 20. 10 needed to be added with 20, and I want to display it on a screen. So system dot out dot print, and into this one double quote concatenated with this function. So I am calling this addition method. So addition addition of this two number is done. Same way I will be using system dot out dot print, and into this double quote plus the name of his class is arith dot subtraction of two numbers 10 and 20, and this is operation of subtraction. So subtraction and colon. So I am using this, so slash n should be there because I have used not println, it is just print. Same way we'll be writing a code for multiplication and division. So it is multiplication and this is division. Here the name of will be changing, it is multiplication and the function is division. That's it. So see the changes is that in the previous example we were using the object for calling the function. Now we'll not use the object, we'll use the name of a class to call that object because this function is static, and whenever it is static it will remain as it is. So just I am saying copy and run. See, it is 10 plus 20 is 30, 10 minus 20 is minus 10, 10 into 20 is 200, and 10 divided by 20 is 0.5. So you will be dealing with some classes that are static. So if any class contain a method called as a static, any class that contain a method called static, the class itself automatically becomes a static. तो अगर आपने कोई भी फंक्शन को अगर नाम उसके आगे स्टैटिक लिखा होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट द क्लास इटसेल्फ बिकम्स अ स्टैटिक क्लास, और उसके जो भी यूज़ करना होगा यानी जो भी आपने यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर मेथड्स, तो यू हैव टू यूज़ इट by the name of that class. That only it is possible to do this operation or to access those things into your real life example. So are you clear with this static keyword, a static method? Yes, sir. Yes. Now I want to do something like this. I want to use some ready-made methods. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था, जैसे math नाम की कोई class है. This is math name of class which is present in java.lang package. By default जो भी होता है that is lang package में होता है. तो उसके अंदर sin है, cos है, tan है, sin, cot, tan, exponential, then floor is there, ceil is there, then power is there. Power means square, 2 raised to 2, 2 raised to 5. राउंड अप भी कर सकते हैं आप, उसको subtract भी कर सकते हैं. You can use for absolute values also, maximum also, दो नंबर के maximum कौन सा है. Then this one. So we'll implement some ready-made functions over here. Okay. So I will be using system dot out dot print ln, और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा suppose I want to do a maximum of two numbers. तो मुझे कोई ready-made function यूज़ करना है, तो I will be using math which is already there in java.lang package dot max. So this is a function, and मैं यहाँ पर बोलता हूँ 150 और 156 दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, ये मुझे आउटपुट में चाहिए.
ये सबको मैं कमेंट्स देता हूँ. I am not using this one. So we will check it. Just right click, run. So the maximum number is 156. तो मैंने भेजा था 115, 156. So automatically I am getting the output. So just like this. Run. So the maximum of two number is 156. दोनों में दिया. So you can implement each and every function over here. So I want to use a power also. So system dot out dot print ln, and I want to check the power 2 raised to 2. So power of 2 to 6, 2 to 6. This means math dot power POW, and we'll be passing as first parameter as 2 and second parameter as 6, and we'll check an output over here. Just as right system right click, run as Java. So 2 raised to 6 is 664 power. 2 into 2 into 2 into 2, it's 2 raised to 6 power. Then we can use some function like this, sine, cos and tan. So we'll check for sine also. One example. So sine of 60. So math dot sin, sine of 60, sine of 60. So we'll check it, right click, run. So sine of 60 is minus 0.3. So a calci, when you open a calci and you go for scientific calci, and here I put 60 and I say sine, there is a radian, there is a grade. So these operations which you see in a scientific calendar, this is programming. You can go for binary numbers and all those things. So ये scientific calculator में आप जो भी operations देखते हैं, everything is possible into this functions. So if you want to go for seal, upper number or floor or square root, we'll go for square root also. Square root. SQ, square root of suppose 25. Right click, run. Square root of 25 is 5. So we are getting everything which is there ready-madely already. These people have created for us. We just need to use this, and you can implement is just like minimum. You can have a maximum also. Everything can be used from these functions. So I'm expecting that you should extend this program rather than using this ready-made functions of math class. You go for writing the code for some basic things that's less like this. I'm expecting that you should create functions for square, then cube, then square root, and maximum of 3 numbers, because there is only maximum of 2 numbers. I want maximum of 3 numbers. Okay, so if I give here maximum of 3 number, it will not accept, because there is no function like this, with 3 parameter. Among 2, दोनों में से एक मैक्सिमम को वो पढ़ सकता है, बिकॉज उसके डेफिनेशन में मैक्सिमम नाम के जो फंक्शन है उसमें सिर्फ हम 2 ही वेरिएबल्स को दे सकते हैं, एक दो इंटीजर, 2 लॉन्ग, 2 फ्लोट, 2 डबल. इससे ज़्यादा हम 2 वेरिएबल से ज़्यादा 3 वेरिएबल के साथ मिनिमम मैक्सिमम नहीं चेक कर सकते. तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड गो फॉर मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ 3 numbers. So this is homework for you. I think you will do this one, and you will implement this static
ऑपरेशन इनटू योर रेगुलर असाइनमेंट्स। तो ये हम रेगुलर असाइनमेंट्स में इसको यूज़ करेंगे। आपको सिर्फ इसके अंदर कुछ फंक्शंस लिखने हैं, जैसे स्क्वायर रूट के लिए, क्यूब के लिए, स्क्वायर के लिए, मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स के लिए आपको ये 3 फंक्शंस इसके अंदर लिखना है। एंड यू इम्प्लीमेंट दिस arith क्लास इनटू दिस arith डेमो एंड यूज डायरेक्टली, एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज स्टैटिक concept, static member concept, using static function or using static variables. So are you clear with the static concept? Yes. Yes, sir. बाकी Yes, sir. अभी आप बोलेंगे सर हमारा जो एक क्वेश्चन मैंने बहुत बार पूछा था, ये पब्लिक स्टैटिक वर्ड मैंने, कैन एनीवन हैव सर्च्ड एनीवेयर, कहाँ पर तो आपने सर्च करके देखा कि ये मेन फंक्शन को स्टैटिक क्यों बोला फिर उन्होंने? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉलिंग दिस मेन फंक्शन एज स्टैटिक? ये मैं निकाल देता हूँ। हमने क्यों बोला है? यानी डज एनीवन हैज द आंसर व्हाई वी कॉल दिस मेन फंक्शन एज स्टैटिक? अगर मैंने उसको निकाल दिया तो क्या होगा? अब मैंने निकाल दिया उसको, हाँ, और मैं अभी इसको रन कर रहा हूँ। देयर इज नो रन एज, और मैंने यहाँ पर उसके नाम के आगे स्टैटिक लिख दिया। अभी मैं इसको रन करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक, रन एज, देखो यहाँ पर आया जावा एप्लीकेशन। तो ये क्यों हुआ? डज एनीवन हैज द रीजन और आंसर, और हैव एनीवन सर्च्ड फॉर दिस व्हाई देयर इज ऑलवेज अ मेन फंक्शन विद स्टैटिक? सी में वैसा फंक्शन नहीं था, C++ में जब हमने कभी भी यूज़ किया तब उसके नाम के आगे स्टैटिक नहीं था, तो यहाँ पर क्यों आया जावा में? नाउ दिस इज होमवर्क, ये आप ध्यान में रखना है, ये आपको सर्च करना पड़ेगा, व्हाई द फंक्शन मेन फंक्शन कंटेन्स अ स्टैटिक कीवर्ड। Sir, it is was ओके, used for memory management. मेमोरी मैनेजमेंट का उसका कोई इशू नहीं है, दिस इज नॉट फॉर द मेमोरी मैनेजमेंट। कोई टेक्निकल रीजन व्हाई? मैंने यस, एक बार सर्च किया था तो वो आया था, इसलिए वो। और एक बार डिटेल में सर्च करो। और मेरा मंडे को तो आप क्लास में आ जाएंगे। मंडे आई एम नॉट देयर इन कैंपस आल्सो, मंडे तो मैं छुट्टी पे हूँ। ट्यूसडे को हम मिलेंगे, तो ट्यूसडे को हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। सर स्टैटिक मेथड को ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं लगता? यस, जैसे मैंने इसके पहले भी बोला था आपको, अगर मुझे ये क्लास यूज़ करना है, ये फंक्शन को यूज़ करना है, अगर ये स्टैटिक नहीं होगा तो मुझे क्लास का नाम लेके इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। और आप जब प्रोग्राम को जब भी रन करते हैं, यू आर कॉलिंग अ क्लास डायरेक्टली। जैसे मुझे यहाँ पर कॉल करना है कोई क्लास को, तो हम क्या करते हैं रेगुलर प्रोग्रामिंग में, देखो ऐसा लिखते हैं CLS, और हम कंपाइल करते समय सपोज कुछ भी लिखेंगे, सो जावा स्पेस ABC, सपोज हमारे क्लास के नाम फाइल है, एंड वी आर प्रेसिंग एंटर, ABC नाम के क्लास को हम क्लिक कर देते हैं। सो एज सून एज द क्लास इज बीन कॉल्ड, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया क्या? नहीं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्या कहना है, कोई भी क्लास को यूज़ करना होगा तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद आप उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके कोई भी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। बट ये मेन फंक्शन में जब भी स्टैटिक होता है तो इसका मतलब क्या है, आप इस फंक्शन को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। तो कैसे डायरेक्टली कॉल किया जाएगा? आप यहाँ पर लिखते हैं जावा ABC, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है arith डॉट, तो हमेशा जब भी आप ऐसे क्लिक करके एंटर प्रेस करेंगे, इसका मतलब वो समझ में जाएगा कि मुझे सिर्फ मेन फंक्शन को ही बुलाना है, बिकॉज दिस इज इंटीग्रेटेड इंटरनली। जावा वर्चुअल मशीन में एक ही फंक्शन का लिंक किया है उस क्लास के नाम के साथ, यानी जो भी क्लास के साथ आपने मेन फंक्शन को पहले वो कॉल करेंगे, कोई और फंक्शन को कभी नहीं कॉल करेगा, तो उसको उतना उन्होंने सिखाया। बट अगर ये मेन फंक्शन है, इसका ऑब्जेक्ट हम नहीं बना रहे, इस क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं बना रहे, तभी भी हम इस मेन फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं? सो whenever I am declaring this class as static, इसका मतलब मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं। किसका ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं? इस क्लास का। तो इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाने, बस मैंने उस क्लास का नाम लिया एंड आई हैव प्रेस्ड, ऑटोमेटिकली ये समझ में जाएगा कि मुझे मेन फंक्शन को ही कॉल करना है, मुझे मेन फंक्शन को ही कॉल करना है, क्योंकि यहाँ पर जावा और कोई क्लास का नाम डाल दिया, इंटरनली डॉट मेन फंक्शन ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाता है, तो आपको वो दिखाई नहीं देगा, बट इंटरनली इट विल बी बाइंडेड विद डॉट मेन फंक्शन। तो सिर्फ मेन फंक्शन को ही वो कॉल करते हैं। इसी वजह से
इस क्लास के नाम के आगे हमें स्टैटिक लिखना पड़ता है। स्टैटिक मतलब क्या? देयर इज नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास एंड देयर इज नो नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट विद रेफरेंस ऑफ दिस क्लास, यानी आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं। सो अरिथ डेमो ob1 डॉट अरिथ डेमो एंड उसके बाद ob1 डॉट मेन, ऐसा जो काम है आपको करने की ज़रूरत नहीं, ये जावा खुद करके लेगा। तो आप ऐसा उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते और उसके मेन फंक्शन को आप ऐसे बुला नहीं सकते। तो डायरेक्टली एंटर करने के लिए, क्योंकि आप एक्सटर्नल बाहर से एंटर कर रहे प्रोग्राम के अंदर, तो दिस इज़ द ओनली एंट्री पॉइंट ऑफ एनी एप्लीकेशन। कोई भी प्रोग्राम में आप लिखो, कितने भी क्लासेस लिखो, जैसे मैंने यहाँ पर एक क्लास लिखा है, मैं ऐसे एक प्रोजेक्ट के अंदर आप हज़ारों क्लास लिख सकते, बट आपका एंट्री पॉइंट एक ही रहेगा। एंट्री पॉइंट एक ही रहेगा, दैट इज़ अ मेन फंक्शन। इसके अंदर से ही आप कहाँ पर भी एंटर कर सकते हैं, और यही एक टेक्निक है जहाँ से आप उसको एंटर कर सकते हैं, क्योंकि आपको कम रन कर रहे हैं। और जावा इंटरप्रेटर जो है उसको एक ही चीज़ पता है कि मुझे एंटर करना है प्रोग्राम के अंदर, तो मेरे को सिर्फ पहले सबसे एक ही पहला फंक्शन चाहिए, वो बोल के मेन। तो मेन में ही जाके एंटर करेंगे वो, उससे ही एंटर करने के बाद इट विल चेंज इट्स पाथ कि कहाँ पर उसको जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग, और ये इंटरव्यू में हर बार पूछा जाता है, वाई द फंक्शन मेन इज विद स्टैटिक, कैन वी कॉल दिस फंक्शन क्लास डायरेक्टली बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑन अ कंसोल, क्या कंसोल पे हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको क्यों नहीं बुला सकते? तो पर्पस रीजन आपको पता होना चाहिए वाई वी आर नॉट यूजिंग दिस वन। ओके, shall I move further for another concept? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now we'll move for the another concept. Now this is called as overriding methods. हमने ओवरलोडिंग उस दिन देखा था। ओवरलोडिंग मतलब क्या? यस, एनीवन नोज? जैसे ऐड नाम का फंक्शन विदाउट पैरामीटर, ऐड नाम का फंक्शन विद टू पैरामीटर्स, इंटीजर एंड इंटीजर, ऐड नाम का फंक्शन विद थ्री पैरामीटर्स, इंटीजर, इंटीजर और इंटीजर, ऐड नाम का फंक्शन विद और एक और अनदर पैरामीटर विद टू पैरामीटर्स, फ्लोट एंड फ्लोट। एक ही फंक्शन का नाम फिर से रिपीट कर रहे हैं हम, ऐड नाम का फंक्शन with two parameters, with double. This concept, same name in same class, same name of function in same class but with different parameters, parameters is called as function overloading or method overloading. And overriding means what? Overriding means what? Add a function with same parameter, I am saying with same parameter or with different parameters, not in same class, इस कंसेप्ट को बोला जाता है ओवरराइडिंग। यानी सेम नाम आपने यूज़ कर दिया, जैसे इंटीजर, ये भी मैंने यूज़ कर दिया, बट ये कोई ए क्लास का है, ये कोई बी क्लास का है, क्योंकि नाम तो सेम हो सकते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते, हाँ। बट आपने ये अलग क्लास में लिखा है, ये अलग क्लास में लिखा है, तो चल जाता है। अब अगर आपको इसको भी कॉल करना है, उसको भी कॉल करना है, दोनों का नाम तो सेम है, पर अभी कैसा करना है, मुझे तो इसको भी बुलाना है और बाद में बाकी मुझे इसको भी बुलाना है, बिकॉज ये कुछ अलग तरीके का लॉजिक हमने इसके अंदर लिखा है, इसमें कोई अलग तरीके का एडिशन का लिखा है, तो ये लॉजिक अगर आपका चेंज है तो इट इज़ नॉट इन द सेम क्लास। ध्यान में रखना कि अगर हमारे सेम क्लास में नहीं है तो उस चीज़ को बोला जाता है फंक्शन या फिर मेथड ओवरराइडिंग। It is called as a method overriding. OVER over RIDDING, overriding, single D है, overriding. Overloading यानी उसी क्लास में सेम नाम रिपीट होना। ओवरराइडिंग मतलब दो अलग क्लास, तीन अलग क्लास, अलग अलग क्लासेस में वही नाम रिपीट होना, उसको बोला जाता है ओवरराइडिंग। यू आर ओवरराइडिंग
ज़्यादा राइड कर रहे हैं, ऊपर वाले क्लासेस को यूज़ करना चाहते हैं। एंड ओवरलोडिंग यानी उसी जगह पर उसी क्लास के अंदर अलग अलग नाम से हम उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है। सो विल राइट समथिंग थियरी अबाउट दिस ओवर राइडिंग। सो आई विल से दैट बाय डिफॉल्ट all methods defined in super class, अभी मैंने इनहेरिटेंस नहीं लिखा, बताया आपको, सिखाया, बट आपको ये कंसेप्ट मेरे ख्याल से पता होंगी। ओवर इनहेरिटेंस मतलब क्या, पेरेंट क्लास चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं हम। हायरार्की, अलग अलग क्लासेस को हम रेफर कर सकते हैं, अलग अलग क्लासेस को इनहेरिट कर सकते हैं हमारी मेन क्लास के अंदर। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इनहेरिटेंस बोलते हैं। जैसे आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स है ना, आपने कुछ तो भी चीज़ों को इनहेरिट करके आए हैं। जैसे अगर आपका स्किन का कलर अगर फेयर होगा तो आप वो इनहेरिट करके आते हैं। अगर आपका बालों का कलर थोड़ा सा अलग होता है, आपके पेरेंट दादा परदादा का वो कलर आपको वही देता आता है। किसी की आंखें नीली होती है ग्रैंड पेरेंट्स की, वही पेरेंट में दिखाई देती है, वही चिल्ड्रंस में दिखाई देती है। कुछ चीज़ों को हम इनहेरिट करके लेके आते हैं। जैसे कोई प्रॉपर्टी होंगी आपकी, ग्रैंड फादर ने ली होंगी तो पेरेंट को ऑटोमेटिकली मिल जाती है, वही आपको मिल जाती है। सो हम इनहेरिट फीचर्स लेके आ जाते हैं। कुछ चीज़ें हम हमारे पेरेंट, ग्रैंड फादर्स, सुपर ग्रैंड पेरेंट के पास से लेके आ जाते हैं, तो उस चीज़ों को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। तो ओवर राइडिंग जो कंसेप्ट है, दिस इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू इनहेरिटेंस। दिस इज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू इनहेरिटेंस। जहाँ पर इनहेरिटेंस आ जाएगा वहाँ पर ओवर राइडिंग आ जाएंगी। ओवरलोडिंग का और इनहेरिटेंस का कोई लेना देना नहीं है, ये ध्यान में रखना है। ओवरलोडिंग यानी वही क्लास में वही फंक्शन का अलग अलग फ्लेवर्स में हम उसको यूज़ कर रहे हैं। और इट इज़ कंपलसरी इन ओवरलोडिंग कि हर एक का डेफिनेशन अलग होना चाहिए। जैसे यहाँ का डेफिनेशन अलग है, यहाँ का डेफिनेशन अलग है, तो यहाँ पर डेफिनेशन के ऊपर हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, बट वैसे यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर डेफिनेशन विल रिमेन एज इट इज, ये चेंज सेम हो सकता है। सो ओवरराइडिंग बाय डिफॉल्ट ऑल मेथड डिफाइंड इन सुपर क्लास, नॉट इन चाइल्ड क्लास। सुपर क्लास आर इनहेरिटेड, everyone knows, are inherited by its सब क्लास। जितने फंक्शंस आपने सुपर क्लास में डिक्लेयर किए, अगर आपने इनहेरिट किया तो वो सब क्लास में आ जाते हैं। एंड कैन बी यूज्ड, आप उसको यूज भी कर सकते हैं बाय द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट आप बनाएंगे उससे आप उसको यूज भी कर सकते हैं बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द सब क्लास, यानी सब क्लास के ऑब्जेक्ट से आप उसको रेफर भी कर सकते हो। सब क्लास के ऑब्जेक्ट से आप उसको रेफर भी कर सकते हैं। सो दिस इज वन थिंग। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इन many occasions we want that object of subclass should use the same name variable in of same name variable, थोड़ा मैं तोड़ देता हूँ। same name variable in many occasions we want that the object of the subclass should use the same method same name, sorry, the same method same name, one second, same method available in super class, but with the different with the different behavior, but with the different variable. This is possible by the concept called as by redefining it, by
defining by redefining the super class in subclass. Now whenever we go for object oriented of subclass, it is created and the method is called and redefined. This concept is called as method overriding. So actually the definition is that when the object when the object of subclass is created and the method is called it uses the redefined method is called method overriding. So we'll implement this into real life scenario. We'll be creating two classes, one is super class and one is subclass. We'll define one function called as display in super, and we also call one function called as a display in sub. दोनों का नाम सेम है, दोनों का डिक्लेरेशन भी सेम है, दैट इज विदाउट पैरामीटर. अब हम इसको भी कॉल करेंगे, इसको भी कॉल करेंगे. ओके, so we'll go for writing a code for this one. So right click, new class, super sub demo, और इसमें हम मेन फंक्शन को ले लेंगे. नाउ विल डिक्लेयर टू क्लासेस, जैसे मैंने बोला है क्लास पेरेंट क्लास को हम यूज करेंगे. सो क्लास सुपर एंड देयर इज वन मोर क्लास सब. क्लास ओके, तो सुपर क्लास रहेंगी और सब क्लास रहेंगी, और इसमें हम जैसे एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, int(x) डिक्लेयर कर देंगे उसको, एंड विल कॉल द कंस्ट्रक्टर सुपर. सो int(x) ऐसा नाम देंगे हम उसको, एंड विल से दिस डॉट x इज इक्वल टू xx. जो xx की वैल्यू आ जाएंगी वो x को आ जाएंगी जो भी हम भेजेंगे. एंड देन आई विल राइट अ फंक्शन कॉल्ड एज void display टू डिस्प्ले दैट वन. ओके, सो मैं एक फंक्शन लिखूंगा और इसके अंदर मैं डिस्प्ले करूंगा. सो system डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड इनटू इसके अंदर मैं वो डिस्प्ले करूंगा वैल्यूज. तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सुपर वैल्यू ऑफ x कोलन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लस x. जो भी x मेरा वेरिएबल है उसकी वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे. ओके, बस इतना ही हम काम करेंगे. सेम वे इन सब में भी हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, int(y) बोल के एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, और हम एक कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे सब का. सो वेन एवर यू आर राइटिंग कंस्ट्रक्टर इट शुड बी द जस्ट लाइक अ नेम. सो सब अगर मैंने अपर केस में लिखा है तो मेरे को सब का s अपर केस में लिखना पड़ेगा. सो int(x) बोलता हूँ मैं, एंड int(y) बोलता हूँ. यहाँ पर दो वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किए हैं और मुझे ये ऊपर भेजना है. सो आई विल बी यूजिंग अ सुपर कीवर्ड. नाउ यहाँ का ये जो देखो, यहाँ का जो सुपर कीवर्ड है मैंने, दिस इज नेम ऑफ अ क्लास, और मैंने यहाँ पर s अपर की यूज़ किया है. जो भी कीवर्ड्स है जावा में ऑल आर रिटर्न इन लोअर केस. जैसे क्लास कीवर्ड है लोअर केस में, इंट लोअर केस में है, आउट जैसे कीवर्ड है, जैसे इंट है, फ्लोट है, डबल है, स्ट्रिंग है, सब कुछ पब्लिक है, प्राइवेट, ये सब कुछ नाम लोअर केस में लिखे आते हैं. तो हमने अभी सुपर कीवर्ड यूज़ किया है, एंड आई विल बी सेंडिंग अ वैल्यू ऑफ दिस x, ये वाला x ऊपर भेजना चाहता हूँ मैं पेरेंट को. सो आई एम सेंडिंग सुपर x. सो ये x की वैल्यू ऑटोमेटिकली इट विल बी सेंड टू दिस सुपर कंस्ट्रक्टर. ओके, सो
it will be sent, and this dot, मैं थोड़ा नाम चेंज कर देता हूँ, y लिख देता हूँ, सपोज y ही रखेंगे. सो दिस डॉट y इज इक्वल टू y, यहाँ का थोड़ा नाम चेंज कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी थोड़ा नाम चेंज कर देता हूँ, xx कर देता हूँ. सो आई एम सेंडिंग दिस xx वैल्यू टू द अपर क्लासेस. ओके, सो जो भी मुझे मिल रहा है मैंने एक तो इसको असाइन कर दिया, और दूसरा वाला है जो मैंने इसको अपर वाले क्लासेस को भेज दिया. सो सुपर डॉट एक्स. अभी यहाँ पर जब भी क्यों नहीं दिखा रहा, बिकॉज दिस एरर, बिकॉज आई हैव नॉट इनहेरिटेड दिस इनटू दिस वन. So I will need to use extend keyword. Extend should be written in lower case. Extends s लगाना है, and I'm using the upper class super. तब जाके ये नीचे वाला एरर आ जाएगा. हाँ, अगर मैंने जब तक ये इसको कमेंट में डाल दिया तो ये एरर दिखाएगा, बिकॉज आई हैव नॉट एक्सटेंडेड. तो उसको पता नहीं सुपर यानी कहाँ पर भेजना है, तो जब तक मैं इसको एक्सटेंड नहीं करता तब तक वो भेजेगा नहीं, तो उसको पता नहीं कि उसकी सुपर क्लास कौन सी है. तो मैंने यहाँ पर कर दिया, एंड नाउ दिस इज बिन असाइन. नाउ अगेन आई एम राइटिंग अ void फंक्शन. सो void डिस्प्ले, वही नाम है जो मैंने ऊपर लिखा था, वही नाम मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर. दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन मेथड ओवरराइडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग. और यहाँ पर जाके मैं वो दोनों चीज़ को डिस्प्ले कर देता हूँ. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, print ln, and I am saying super x value is equal to plus x and system dot out dot println sub y value is equal to plus y. I am putting semicolon over there. यानी आपने यहाँ पर कुछ नहीं भेजा है, ये इंटरनली भेज रहा है. इंटरनली इट इज सेंडिंग टू दिस वन. नाउ विल बी राइटिंग अ कोड here. I will be creating object of super. So super say a is equal to new super, और यहाँ पर मैं एक वैल्यू भेज देता हूँ, सपोज 10, एंड आई एम कॉलिंग एज a डॉट डिस्प्ले. यानी ये 10 की वैल्यू पहले इसको जाएंगी. ओके, और वो डिस्प्ले करेंगे. तो डिस्प्ले करने के लिए वो डिस्प्ले हो जाएगा. नाउ आई एम कॉलिंग सब. सब ऑब्जेक्ट का नाम लेंगे b इज इक्वल टू न्यू सब, और इसमें थोड़ा सा अलग वैल्यूज हम भेजेंगे. इसमें भेजेंगे 20, 30, यानी 10 की जगह पर 20 आ जाएगा अभी. तो कैसे आएगा, तो हम इसको सिर्फ बोलेंगे b डॉट डिस्प्ले. ओके, सो ये यहाँ पर सुपर नहीं, यहाँ पर हम बोलेंगे सब x एंड y. इक्वल्स टू साइन रहेगा सर. ओके, हाँ. Now what is expected output? Can anyone predict what will be the expected output? What is expected output now? सबसे पहले क्या आउटपुट में आ जाएगा, बोलो. What will be the first output?
this class will be called, what is the class? Super. ये वाली क्लास को जाएगा, ये 10 जो है ये यहाँ पर आ जाएगा, वेरिएबल को असाइन हो जाएगा, x को वैल्यू हो जाएगी 10, एंड देन आई एम सेइंग डिस्प्ले, यानी आपका आउटपुट आ जाएगा ये सुपर ऑफ x इज, ये पहले आपको दिखा देगा और इसकी वैल्यू हो जाएंगे 10. अब ये काम खत्म हो चुका है. नाउ आई विल बी सेंडिंग अगेन दिस फंक्शन with two values 20 and 30 to sub function, that is sub class का कंस्ट्रक्टर को जाएंगे. ये यहाँ पर आ गया, इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 20 है, अब सॉरी 20 है इसकी वैल्यू 30 है. ये फिर से सुपर को कॉल करेंगे, यानी 20 जो वैल्यू है ये फिर से ऊपर लेके जाएंगे यहाँ पर, इसको वो असाइन कर देंगे. इसको वो असाइन करने के बाद y को वैल्यू को असाइन करेंगे 30 और फिर से नीचे आ जाएगा. और देन आई एम सेइंग बी डॉट डिस्प्ले. Now it will be calling the display function of its own class. It will be calling the function of this own class, और ये यहाँ पर उसकी values उसको define करेगा, जो भी values है उसकी. So display function दो सब ने super के display को inherit कर दिया है इसके अंदर, but ये खुद के display को ही call करेंगे अभी. So we'll get this output 20 and 30 in second section. So we are running this program and it is displaying 10 and 20 of x value. And what about y? Why it is not displayed? Sir, double y. Huh? Double y. Yes. Variable is y. मैंने तो इसको असाइन कर दिया है, इसको तो वैल्यू आ चुकी है y की वैल्यू. Yeah. मैं उसको ही डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? यस. एनी रीजन? मैं यहाँ पर वाई बोल देता हूँ, वो तो एरर दिखा रहा है क्योंकि सर डिस्प्ले की स्पेलिंग रॉन्ग है. कहाँ पर? Void. वॉइड डिस्प्ले बराबर है. ऊपर भी क्या था? वॉइड डिस्प्ले. नीचे भी यस. DIP है. यस. Okay. इट इज. पर मैंने गलती क्यों की? तो नोटिस. बी का Notice करने. हाँ, बी का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया, बी के ऑब्जेक्ट ने ही उसको बुलाया, पर पहली बार उसने 10 दिखाया, दूसरी बार उसने 20 दिखाया. अभी मैं इसको फिर से एक बार रन कर देता हूँ, मैंने वो गलती सुधार ली अब मेरी. आई एम सेइंग रन एंड आई एम सेइंग दिस जावा. नाउ विल गेट एन आउटपुट. मैंने वो गलती इसलिए की थी कि मुझे फर्स्ट वाले डिस्प्ले को बुलाना था, मैंने ऑब्जेक्ट सेकंड सब क्लास का बना दिया और मैंने इसी फंक्शन को कॉल किया था ऊपर वाले को. अब मैंने मेरी गलती सुधार ली, अब मेरे को आउटपुट मिल रहा है अनएक्सपेक्टेड. नाउ द पर्पस इज दैट whenever you are inheriting something in a sub class, you can call the function of a super class. जैसे मैंने ये डिस्प्ले को कॉल किया था, पहली बार आया और दूसरी बार भी उसके 10 की वैल्यू 20 हो चुकी थी. नाउ when I overwrite this one, तो यहाँ पर भी वो डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पर भी डिस्प्ले हो रहा है. So I am getting an output like this one. So you can pass internal values from lower function to the upper function. आप कौन से भी फंक्शन को कभी भी कॉल कर सकते हैं. इट इज चॉइस ऑफ यू दैट किस फंक्शन को आपको कॉल करना है. तो फंक्शन ओवरराइडिंग इज बेसिकली यूज्ड whenever you are inheriting any classes into your real life scenarios. Okay. So I think this super keyword is now clear with you. Yes. Yes sir. Okay. Now one more method keyword is there in the Java that is most important being used, that is abstract keyword.
Now a class that is declared as abstract, वो concept मैं आज लूँगा नहीं because there will be a bombarding in front of you. Now I am expecting that we'll meet on Monday, Tuesday, I think so, for Java. I am expecting that you should write some programs as an assignment at home. You should write some program as an assignment from at home, और मैं आपको वो assignment अभी दे रहा हूँ. Do you have a pen pencil with you? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So new assignments for you. Now I'm expecting that you should define a class shape spares, S-P-H-E-R-E, spare with properties radius, and you have to write a constructor and method. You have to write a constructor and method to calculate volume of sphere. And what is the formula for that? It is 4 by 3 pi r cube. 4 by 3 pi r cube. This is the only formula for this. 4 by 3 pi r cube is the formula for this one. You have to write a constructor and a method to calculate this one. And again, I want you to define a class person with features, with properties like name, and then its address, then its age, and you need to display all details. Again, this is the first assignment for you, this is second assignment for you, and third one, you need to create a class result that will be accepting marks of subject 1, of marks 1, marks 2, and marks 3, third subject, marks 4th subject, marks 5th subject, and marks 6th subject. So we will be accepting only these values. You will be accepting this roll number, you will be accepting the name. Now what you have to do is that आपको सिर्फ रोल नंबर, नाम और 6 सब्जेक्ट्स के मार्क्स लेना है. एंड व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट इज दैट you have to calculate total, you have to calculate the percentage, and you have to generate the result. Generate the result. किस तरीके से चाहिए? मुझे रिजल्ट चाहिए रोल नंबर, नेम, देन marks of subject 1, marks of subject 2, marks of subject 3, marks of subject 4, marks of subject 5, subject 6, total marks, and finally the percentage. Okay, so you have to calculate this and you have to display the result in this format only. Okay, so this is the third assignments. Yes, लिखा सबने? यस सर। Yes, sir. ओके, सो आई एम एक्सपेक्टिंग Yes, sir. ये आप घर पे लिखोगे, कंपाइल करोगे, एक 200 पेजेस की नोटबुक बनाओगे. जितने भी एग्जांपल्स मैंने क्लास में लिए हैं, जो भी मैंने असाइनमेंट के लिए आपको दिए हैं, जैसे मैंने आपके एम्प्लॉय का पीएफ, एचआरए, ये सब कुछ हमने कैलकुलेट किया था. फिर हमने फंक्शन ओवरलोडिंग के एग्जांपल्स लिए, फंक्शन ओवरराइडिंग के एग्जांपल्स लिए, हमने अकाउंट के डेबिट क्रेडिट का एग्जांपल्स लिया. ये सब कुछ आपको उस नोटबुक में लिखना है, एंड यू विल मीट with that assignment on Tuesday in a class. Okay, Okay, sir. so till then, ओके सर। good day and take care.